Yes, so we can start with the chapter electrostatics, but before that, we'll like to revise whatever we have done in the 11th standard in this chapter electrostatics. तो इस चैप्टर के अंदर हमने 11th स्टैंडर्ड में क्या क्या देखा है वो एक बार हम फटाफट रिवाइज करेंगे, ताकि उसके आगे का जो पोर्शन है, आगे का जो पार्ट है, वो हम इस चैप्टर के अंदर कर सके। तो 11th में हमने क्या क्या देखा है, किसको याद है? तो देखेंगे ठीक से कि सबसे पहले हमने देखा है कि द कुलोम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, फटाफट थोड़ा सा देखेंगे कि क्योंकि जो मोस्ट ऑफ कंसेप्ट जो तुमको मोस्टली पता ही रहेंगे, तो लेकिन सिर्फ ऐसा है कि ये चैप्टर डायरेक्ट स्टार्ट करने से क्या होगा कि एक गैप तैयार हो सकता है। अगर सपोज किसी को 11th स्टैंडर्ड में क्या हमने किया है वो अगर कुछ भी पता नहीं है, तो उनके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चैप्टर जो है वो बीच में से ही स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक ब्रीफ में रिवाइज करेंगे क्या क्या हमने 11th स्टैंडर्ड में इस चैप्टर के अंदर किया है। तो देखो बोर्ड सभी को दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमने ऑलरेडी देखा है कि इस चैप्टर में सबसे पहले जो आता है कंसेप्ट वो है कुलोम्स लॉ। ओके, तो देखो ठीक से कुलोम्स लॉ विच टेल्स अस सिंपली दैट, देखो ठीक से अगर हमारे पास दो चार्जेस है, suppose we have the two charges, this is suppose first charge and this is suppose second charge, and suppose they are at a distance r from each other। तो suppose ये दोनों जो charges है वो एक दूसरे से r इतने distance पे है, suppose ये distance जो है उनके बीच में वो है suppose r। ओके, तो ऐसे केस में ये दोनों चार्जेस जो है वो आपस में एक रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं। repulsive force, we can see this is suppose the charge of magnitude q1 and this is suppose the charge of magnitude q2, then this q1 and q2 exert some force on each other, and this force is repulsive if the charges are similar of similar type, and this force is attractive if the charges are unlike, means opposite type। तो ये जो फोर्स है, the force acting on this charge q1 due to q2 will be directed this way from right to left like this, you can say। तो ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, उसको हम बोलेंगे F12, remember, and the force acting on Q2 due to Q1 is going to be in this direction, and it is given by F21, force acting on 2 due to 1। okay, and both of these forces are given by the single formula that is given in electrostatics, given by Coulomb's law, that is F is equal to K, that is the constant, into Q1 into Q2 upon R square, where R is going to be the distance between these two particles, charged particles। So the distance between two charges is always directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of distance between them, and this is called as the Coulomb's law। And the constant of proportionality here is given by K, which is going to be equal to 9 into 10 raised to 9 Newton meter square per Coulomb square। This is the value of K we have already there, and also we have that this K can also be written to be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, remember। तो ये जो है K का वैल्यू जो है 1 upon 4 pi epsilon naught बनता है, and along with that we have the value of K, sorry, we have the value of force F to be simply equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 upon R square, and this is called as the Coulomb's law of electrostatics, Coulomb's law in electrostatics। Here this the value, ये K का जो वैल्यू है वो 9 into 10 raised to 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, नो डाउट। और इससे भी आगे जाके ये जो इप्सिलॉन नॉट है, ये इप्सिलॉन नॉट मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का परमिटिविटी कहलाता है वो। और ये जो है एक्चुअली इट इज द एबिलिटी of the medium to restrict the two charges, not allow, remember it is the ability of the medium to restrict
the two charges to interact between them. For example, if we have the two charges which are kept in air or vacuum, and this is suppose Q1 and Q2, then the force between these two charges when they are in vacuum is given by the formula F is equal to F naught, we can call it as. So F naught is going to be equal to 1 upon 4 pi into epsilon naught into Q1 Q2 upon R square, where R is going to be the distance between them. But if the same charges are kept in any medium, other medium, just suppose for example there is another medium like water और any other medium like, तो अगर ये मीडियम के अंदर इनको रखा हुआ है, ये दोनों चार्जेस जो है वो हमने सेपरेट मीडियम के अंदर अगर रख दिया, ठीक है, और फिर इस मीडियम के अंदर जैसे ही वो रख देंगे तो उनके बीच में जो फोर्स काम करेगा तो उसको हम बोल देंगे F, सपोज ओनली F चलेगा। तो वो F जो फोर्स है वो एक्चुअली हमको दिया जाएगा, that force F will be actually equal to 1 upon 4 pi into epsilon into Q1 Q2 upon R square, where Q1 Q2 is going to be the same, R is going to be the exactly same, only the difference is in epsilon here. तो बाकी सब चीजें सेम है, सिर्फ यहाँ पे epsilon नॉट के बदले क्या आ गया, ये देखो epsilon आ गया। तो इसलिए ये जो epsilon है, it is called as the permittivity of this medium here, and the permittivity of this medium is always going to be greater than the permittivity of vacuum itself. तो वैक्यूम का जो परमिटिविटी होता है वो epsilon नॉट से डिनोट किया जाता है, और मीडियम का जो परमिटिविटी होता है epsilon से डिनोट किया जाता है। और ये होता है कि इन दोनों का जो रेशियो है, means how many times the permittivity of vacuum is greater than the permittivity of medium, that is denoted by K, and it is called as the dielectric constant. Remember, the dielectric constant is nothing but the ratio of that is denoted by small k. Actually it is the ratio of permittivity of the medium to the permittivity of air or vacuum. It is called as the dielectric constant, and this is the definition. It's a unitless, dimensionless constant, remember. So this is going to be the permittivity of vacuum, permittivity of medium, and a dielectric constant. We can also write that the permittivity of any medium in terms of its dielectric constant as epsilon is equal to epsilon naught into K, remember. तो ये भी एक फॉर्मूला हमारे पास मिल जाता है. This dielectric constant gives us an idea about how many times the permittivity of the medium is greater than the permittivity of vacuum, remember. तो ये जो होता है, this is called as the dielectric constant. चलो ठीक है, ये हमने समझ लिया, और इसके ऊपर बेस्ड जो है नेक्स्ट हम देखेंगे अब आगे कि इंटेंसिटी कैसे डिफाइन किया जाता है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है तो वो कैसे डिफाइन किया जाता है, तो उसके लिए हम ये देख सकते हैं, सपोज वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज केप्ट हियर and suppose that there is a electric field produced by this charge. तो ये जो चार्ज है इसके द्वारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा होगा, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा सकते हैं, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करेंगे, तो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है तो वो एक्चुअली होता क्या है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो अभी देख सकते हैं आराम से कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो नजदीक वाले पॉइंट्स पे जरूर ज्यादा होगा, यहाँ पे जरूर ज्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, यहाँ पे और कम होगा। तो जैसे जैसे हम दूर जाते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज से, तो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होता जाएगा, इट विल गो ऑन बिकमिंग मोर एंड मोर वीक। तो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिपेंड ऑन द सेंट्रल चार्ज विच इज प्रोड्यूसिंग इट, एंड एट द सेम टाइम इट विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P हियर, तो इस पॉइंट P पे हमको इंटेंसिटी निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है हमको, देखो कि उसके लिए हमको एक सिंपल सी बात करनी होती है कि एक टेस्ट चार्ज लेने का। ये सपोज एक टेस्ट चार्ज है एंड इट्स वैल्यू इज सपोज Q0। ओके, ये Q0 ये टेस्ट चार्ज है।
और अभी हमको क्या करना है, इस टेस्ट चार्ज को हमको रखना है कहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो टेस्ट चार्ज को हमको लेके जाना है यहाँ पे, देखो ठीक से, इफ यू सपोज कीप दिस टेस्ट चार्ज, suppose this test charge is kept at this point P here where the electric intensity is to be found out। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे, जैसे हम इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखते हैं, तो इमीडिएटली क्या होता है, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स काम करने लग जाएगा जो कि इस लाइन के अलोंग होगा, देखो ठीक से। तो इस लाइन के अलोंग इस डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है इसके ऊपर, एंड दिस फोर्स विल बी expressed as F suppose, and we can define the electric intensity to be simply equal to the ratio of, hello, okay, so basically what happens is, whenever the test charge is kept in this electric field here, the whatever amount of force is acting on that test charge divided by this test charge itself is actually called as the, okay, so basically the electric intensity at any point in the electric field is actually defined as the ratio of the force per unit charge। so देखो ठीक से, this ratio of the force acting per unit charge actually is called as the electric intensity। remember, ये definition है electric intensity का। इससे जब हम जब ये रेशियो जब निकालेंगे, क्योंकि देखो जब फोर्स ज्यादा होगा तो जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे ज्यादा स्ट्रांग है, ये हमको पता चलेगा। और जब फोर्स कम होगा, यूनिट चार्ज पे जब फोर्स कम काम करेगा, तो उसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थोड़ा वीक है, ऐसा हमको बोलना पड़ेगा जरूर। तो ये होता है हमेशा कि द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द electric force acting per unit charge, okay, and automatically its unit becomes Newton per coulomb, and at the same time its formula can be derived in this way। अभी सपोज ये जो पार्टिकल है, ये इस सेंट्रल वाले चार्ज से अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, अगर हम मान लेते हैं r डिस्टेंस पे, सपोज ये डिस्टेंस r है मान लो, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ये जो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज है, तो वो हम कूलम्ब्स लॉ से निकाल सकते हैं आराम से। तो वो हमको मिल जाएगा 1/4πε0 into q into q naught, that is to be divided by r square, correct है, and that is to be whole divided by q naught itself, where q naught is going to be the test charge here, which is one of the charges interacting, so that we can just cancel this q naught from both this numerator as well as denominator here, and get this formula for intensity, electric intensity, to be simply equal to E is equal to 1/4πε0 into q upon r square। so this is going to be the formula for electric intensity due to a charge q,
एट अ डिस्टेंस r। मतलब देखो ठीक से, एक सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास एक चार्ज है, मान लो ये चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से चारों तरफ उसके सभी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ चाहिए, अगर सपोज इस पॉइंट से एक आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहाँ पे हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये सपोज पॉइंट पी हम मान लेते हैं जो आर डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस क्यू वाले चार्ज की वजह से। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिंपली E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला जो है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, ओके, पॉजिटिव चार्ज। अभी यहाँ पे क्या है ना कि इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हमको लिखना है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं आराम से कि वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस विल बी E बार एक्चुअली विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into q upon r square into r cap or r naught cap we can say, where r naught cap stands for a small unit vector which is directed along this radial outward direction। ये देखो यहाँ पे, तो ये जो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन होता है, तो इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर जो होता है उसको ही हम बोलते हैं आर नॉट कैप, रिमेंबर। एंड दिस आर नॉट कैप विल बी मल्टीप्लाइड हियर। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ही हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिलेगा इन वेक्टर फॉर्म, ओके। तो ये बनता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। And at the same time, we have to also understand here that if r naught, if this q is negative, देखो ठीक से, अगर ये चार्ज q जो है वो अगर नेगेटिव है, तो central charge is going to be negative, suppose this is a negative charge, and suppose from this negative charge we want to find out the intensity at a particular point which is at a distance r from it। तो यहाँ पे r distance पे एक point p है और इसका भी मैग्नीट्यूड -q ही है, नो डाउट। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा तो वो कितना बनेगा, तो हम लिख सकते हैं आराम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, लेकिन यहाँ पे जो क्यू जो है वो माइनस है, नेगेटिव है, और उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा -q अपॉन आर स्क्वायर, एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद आर नॉट कैप हियर अगेन। And r naught cap is once again going to be the electric unit vector which is directed along this direction, radially outward direction। ये r naught cap है हमारा, तो इस r naught cap के यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि जो ये माइनस साइन जो है, तो इस माइनस साइन की वजह से क्या होगा, देखो ठीक से, ये माइनस साइन सामने आ गया और यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर नॉट कैप। अभी देखो इस फॉर्मूला में और इस वाले फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, चेक कर सकते हो आराम से। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं है और यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इन दिस केस दिस ई बार इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली पैरेलल टू आर नॉट कैप। मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टेड in the same direction as that of this radial vector, radially outwards vector, okay। But in this other case, in second case, here intensity vector is actually anti-parallel to this unit vector। तो ये बात हमको अच्छी तरह समझनी है, याद रखो ठीक से। ओके, तो ये हम समझ सकते हैं, ओके। The next concept here in this chapter is the principle of superposition। Remember, what is the principle of superposition? अब यहाँ पे waves का नहीं है, principle of superposition of forces amongst the charges। तो वो क्या कहता है, देखो ठीक से, if we have the different number of charges, like suppose this is the point charge like q1, this is another point charge which is of magnitude q2, this is suppose another point charge which is of magnitude suppose q3, and suppose this is the point where we want to find out the electric intensity। तो यहाँ पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करते हैं, देखो ठीक से,
कि उसके लिए हमको ये जो पॉइंट है वो पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करना है, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मेजर करना होगा, जिसको हम बोल देते हैं सपोज R1। ओके, और ये जो डिस्टेंस है ये भी हमको डिस्टेंस मेजर करना है, और उस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं सपोज चलो R2। ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेम पॉइंट फ्रॉम दिस चार्ज Q3 here will be denoted by R3। ओके, नो डाउट। तो ये तीन डिस्टेंसेस हमने मेजर किए, तीन चार्जेस है करके, और अभी हमको ये क्या करना है, देखो ठीक से इस पॉइंट पे जो हर एक चार्ज जो है वो अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो देख सकते हो आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम दिखाएंगे यहाँ पे। इस चार्ज की वजह से Q1, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा यहाँ पे वो एग्जैक्टली इसी लाइन में होगा, और उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। वी कैन कॉल इट एज E1। okay, E1 stands for the electric field due to Q1 at this point here, E1 bar we can say। at the same time the second charge ये जो Q2 है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पैदा होगा तो वो इस डायरेक्शन में होगा जरूर, उसको हम E2 नाम दे सकते हैं, नो डाउट। तो ये बन गया हमारा E2 बार। और तीसरा जो चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड Q3 जो है चार्ज, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, जिसको हम E3 बोल सकते हैं आराम से, एंड दैट E3 will be acting in this direction here, so we can call it as E3 bar। okay, now what we have to do here is we have the paragram law of vector addition, right? So using that paragram law we have to add all these three vectors together। तो ये तीन वेक्टर्स को हमको ऐड करना होगा, और इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट एक ही वेक्टर बनेगा, और उस रिजल्टेंट को हम एक्चुअली बोलेंगे इन तीनों का नेट, मतलब इस पॉइंट के ऊपर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ठीक से यहाँ पे ये जो इस तरफ जो आएगा एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो बनेगा, तो दैट वेक्टर एक्चुअली दिस इज सपोज E बार। ओके, दिस E बार और वी कैन कॉल इट एज E net bar। So this E net bar is actually the vector sum of all these three, E1, E2 and E3 actually, and these three when added vectorically we get the actually the net electric field at this point P here। तो इस पॉइंट P के ऊपर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना होता है, तो हर एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे बनता है उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स के वेक्टर सम के बराबर। So we can write in the vector form that E net bar is actually equal to E1 bar plus E2 bar plus E3 bar, and if there are number of charges then also we can continue this sequence up to the large number of n number of charges, that is last is En bar। okay, but here we have to understand that these individual electric fields can be found out by using the same formula which we have just previously used here। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला हमने यूज किया था एक इंडिविजुअल चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला हमको यूज करना है। हेलो, हाँ, okay, so here it is, this is the formula which is the formula for the electric intensity due to an individual charge। now the same formula we have to use it for this number of charges here। तो यहाँ पे इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है जिसको हमने E1 बोल के रखा है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पे E1 निकालने के लिए Q1 को यूज करना पड़ेगा जरूर, तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस R1 है वो यहाँ पे आ जाएगा R1 और उसका स्क्वायर, एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय ये जो है वेक्टर, यूनिट वेक्टर in this direction which we can call it as a R1 cap। okay, R1 cap उसको हम बोल सकते हैं। so this is going to be R1 cap plus here it is the next is E2 का जो है वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q2 and that is to be divided by R2 square
and it is to be multiplied with R2 cap and plus तीसरा जो टर्म है वो भी हमको मिल जाएगा आराम से in the same way, that is 1 upon 4 pi epsilon naught into Q3 upon R3 square, and that is to be multiplied with R3 cap. ओके, तो ये जो इक्वेशन हमको मिलता है इसमें से चलो ठीक है, हम ये 1 upon 4 pi epsilon naught जो है वो तो कॉमन निकाल भी सकते हैं, नो डाउट, but what we are left inside is Q1 by R1 square into R1 cap plus Q2 by R2 square divided by R2 cap plus Q3 by R3 square, that is divided by R3 cap. Okay, this is going to be the formula for finding the net electric field due to the combination of charges, multiple charges. If there are number of charges, then the total net electric field due to the number of charges will be obtained in this way. Okay, next comes to the concept of electric dipole here. तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है वो भी हमको अच्छी तरह समझना है. अच्छा, सबसे पहले उससे भी पहले, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या होता है? It is a system of two equal and opposite charges which are separated by some distance, finite distance. Just for example, if we have this negative charge here and we have this positive charge kept at this point here, which are separated by some distance which is denoted by 2L. तो देखो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा 2L के बराबर हुआ करता है. ये सपोज 2L डिस्टेंस है, तो that will be the electric dipole. Remember, the electric dipole is nothing but the, suppose this charge is going to be plus Q and this charge is going to be of magnitude minus Q. So this system of two equal and opposite charges which is separated by some finite distance will be called as a dipole. यही डाइपोल है. रिमेंबर, अभी इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो हम कैसे निकालेंगे? तो इट इज डिफाइंड एज, डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज and the distance between two charges. So simply Q into 2L. This is called as the dipole moment, electric dipole moment, and it is measured in coulomb meter. Remember, coulomb meter, and also it's a vector quantity. So it's vector and it is directed from negative to positive. Remember, तो इसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहता है. याद रखो ठीक से. दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज. तो इस डायरेक्शन में वो रहेगा, इस तरफ रहेगा. याद रखो ठीक से. So this is called as a electric dipole, and in vector form we can write it as Q into 2L into L cap okay. So this is actually going to be the electric dipole moment. Remember, now we'll see that electric dipole moment, उसके examples क्या है? तो हम देख सकते हैं कि सोडियम मॉलिक्यूल NaCl मॉलिक्यूल जिसके अंदर सोडियम पॉजिटिव चार्ज्ड और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज्ड होता है. तो दिस सोडियम मॉलिक्यूल is going to be an example of a electric dipole. Remember, again there is a example HCl. HCl molecule is also the example of electric dipole. Remember, so all the molecules, polar molecules, are the examples of electric dipole we can see. Okay, तो अभी क्या होता है ना कि every electric dipole produces some electric field at a point near it. तो कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक स्पेशल फॉर्मूला से दिया जाता है. सो कंसीडर अ डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज which is kept at this end point here. ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है सपोज, और ये उसका नेगेटिव चार्ज है इधर. तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अगर हमको एक्सिस वाले पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे, मतलब इस सपोज एक्सिस पे जो कोई भी पॉइंट है, ये सपोज P, तो इस पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है E एक्सिस, उसको हम बोल सकते हैं. इट इज गिवन बाय 1 upon 4 pi epsilon naught into
2p upon, actually it is 2pr upon r square minus l square in the whole square. Remember, where r is going to be the distance between this point here and this point p here. ये p जो point है, इस point का जो distance है यहाँ से center से, center of dipole से, it is denoted by r actually. ये distance r है और obviously जो जैसा कि हमने अभी भी बोला कि ये जो distance total distance है वो 12 रहने वाला है. तो ये 12 होने की वजह से क्या होता है, ये जो डिस्टेंस सेंटर वाला जो डिस्टेंस है, सेंटर वाला जो पॉइंट है, तो इसके लेफ्ट साइड वाला जो डिस्टेंस है वो बन जाता है L और उसके राइट साइड में जो है वो भी L बन जाता है. तो ये इस तरह से है एंड दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट along the axis of a dipole, and this intensity will be directed in the same direction as that of the dipole moment. तो ये डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में वो डायरेक्टेड होता है. तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट है तो इस तरफ डायरेक्टेड होगा और यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट है तो इस तरफ डायरेक्टेड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा. तो ये याद रखो. एंड दिस फॉर्मूला कैन आल्सो बी अप्रोक्सीमेटेड. तो इसका अप्रोक्सीमेशन भी है हमारे पास, देखो ठीक से. तो अप्रोक्सीमेशन ये है, इफ सपोज दिस L स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, देन वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at any point along the axis of a dipole is always given by the formula 1 upon 4 pi epsilon naught into 2p upon r cube simply. So this is going to be another formula for finding the electric intensity at a point due to the dipole at a point along its axis. Okay, now we'll talk about the equator. If suppose the same situation is there, suppose we have another dipole which is consisting of the two charges, which are one is the positive one, this is the negative charge or positive charge, and this is the negative charge here. And suppose we want to find out the intensity at a point, any point along the equator of this dipole. तो इस dipole के equator पे कोई भी एक particular point consider कर लो. Suppose this is the equator. And on this equator there is a particular point called P suppose. तो इस point P पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है, तो उसके लिए ये जो डिस्टेंस है वो हमको पता होना जरूरी है. ये सपोज r डिस्टेंस है और इस डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो L है और ये भी L है ऑब्वियसली. तो ऐसे केस में हमको ये फॉर्मूला मिलता है, इट इज E इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught into simply P upon r square plus L square the whole raised to 3/2. This is going to be the formula for finding the electric intensity at a point along the equator. कोई भी इक्वेटर पे जो पॉइंट होता है तो वहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो इसी फॉर्मूला से निकाला जाता है. लेकिन हमको ये पता है कि if L square is again very small than r square, then we can just have an approximation of this and get it simply. The intensity at equator is going to be 1/4 pi epsilon naught into P upon r cube simply. So this is going to be the formula for finding the intensity at a point along the equator of a short dipole. This is only for short dipole. This is also for short dipole, but these two above formulae are for the long dipole. So this is all about the dipole. And even one more thing we have studied in last year 11th standard, that whenever a dipole is kept inside a electric field, suppose there is a electric field which is consisting of the lines of force which are directed from left to right like this. तो अगर ये इस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड E है सपोज, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने एक डाइपोल रख दिया, सपोज दिस इज अ डाइपोल, सपोज ये एक डाइपोल हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, जिसका एक एंड पॉइंट जो है वो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे सपोज पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे एंड पॉइंट पे उसके नेगेटिव चार्ज है, ये सपोज नेगेटिव चार्ज है. और इस डाइपोल के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से दो फोर्सेस काम करेंगे. ये इस पॉइंट पे इसको हम A बोल सकते हैं और इसको B बोल सकते हैं. तो इस पॉइंट A के ऊपर जो फोर्स काम करेगा
इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इस डायरेक्शन में होगा और उसको हम E बोल Q टाइम्स E इतना बोल सकेंगे, नो डाउट. So we can call it as Q times E. This much will be the force acting on this positive charge due to the electric field. At the same time, at this negative charge, there will be a force acting on this negative charge also in the opposite direction, which is going to be this way. So it is denoted by QE. Okay, minus QE we can say. तो ये जो फोर्स है वो यहाँ पे माइनस ऑफ QE के बराबर होगा जरूर. और ये दोनों फोर्सेस जो है, ये दोनों फोर्सेस मिलके कपल तैयार करेंगे, टॉर्क तैयार करेंगे, एंड दैट टॉर्क विल बी एक्चुअली गिवन बाय द फॉर्मूला वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस. तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है टॉर्क का. टॉर्क इसी तरह से निकाला जाता है. टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनी वन फोर्स multiplied by perpendicular distance between two forces. So in order to find out the perpendicular distance, we can just extend this line here. तो ये लाइन अगर हमने थोड़ा एक्सटेंड किया इधर से और यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे, तो वो उसको C पे मिलेगा. Suppose this point is named as C. Then we can see that the angle made by this electric dipole with the electric field, डाइपोल मोमेंट का जो एंगल बनता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. तो अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, तो वो हम देख सकते हैं आराम से. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन, राइट. ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे भी वो होगा जरूर. ओके, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन सी डायरेक्शन में है, तो वो देख सकते हैं आराम से कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गोइंग टू बी अलोंग द नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ करता है. ये देखो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन है. ओके, सो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हमको बोलना होगा थीटा. तो अगर इसको हम थीटा बोल देते हैं, तो इस थीटा के लिए इस ट्रायंगल के अंदर ये जो अपोजिट साइड उसका है वो है AC और उसका जो हाइपोटेनियस है वो है AB हियर. सो वी कैन से दैट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो से कि साइन थीटा कंसीडर करना पड़ेगा. वी कैन कंसीडर द फॉर्मूला फॉर साइन थीटा व्हिच इज गोइंग टू बी एक्चुअली AC अपॉन AB. बट इफ वी टेक दिस AB इन दैट साइड, देन वी कैन गेट सिंपली AC व्हिच इज इक्वल टू AB sin theta, and then we can be able to find out the formula for AC. And this AC actually becomes equal to AB into sin theta. But AB मतलब क्या है यहाँ पे, ये देखो ये AB जो है वो actually 2L के बराबर है. इसलिए अगर हम यहाँ पे डाल देंगे उसको, तो ये बनेगा 2L into sin theta. And then we can just plug in this value of AC here in this formula, so as to get this torque is equal to force into AC actually. But this AC can be replaced by is 12 sin theta. So ये F into 12 sin theta बन गया. लेकिन हमको पता है कि फोर्स कितना है, तो ये देखो फोर्स is going to be QE actually, and if we replace it by that, then we can get this torque is equal to QE into sin 12 sin theta. तो ये हमको मिल गया फॉर्मूला 2L into sin theta. Okay, and then we can simply simplify this as, तो इसको अगर हम और आगे जाके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा, देखो ठीक से, टॉर्क इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू 2Q into 2L which is kept in a bracket and multiplied by E into sin theta. So this is going to be the formula for torque. But as we know that this Q into 2L is actually called P, that is electric dipole moment, and we can just replace this here and get this PE sin theta as a final formula for torque acting on any dipole whenever it is kept in a electric field by making an angle theta with it. So अगर डाइपोल का जो एक्सिस है या डाइपोल मोमेंट जो होता है, तो वो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर थीटा इतना एंगल कर रहा है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर एक टॉर्क काम करता है जो कि PE sin थीटा के बराबर हुआ करता है, जिसको हम वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, टॉर्क बार इज इक्वल टू P बार क्रॉस E बार. Remember, this is the vector form of this equation. Okay,
And at the same time, we can also remember that this torque will be maximum only when theta is going to be 90. तो जब थीटा 90 होगा तो साइन थीटा 1 बनेगा, और उसकी वजह से यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क कितना बनेगा, सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ P एंड E के बराबर. तो दिस maximum torque becomes actually equal to P into E. Remember, this is going to be the formula for torque acting on a dipole which is kept in a electric field. The next concept is about the lines of force, which we already studied in 11th standard. What are the lines of force? Lines of force. So basically, the definition of line of force is that if suppose we have a positive charge, take this as a positive charge. Now, if we take a small test charge here, तो यहाँ पे अगर हम एक टेस्ट चार्ज अगर रख देते हैं, मान लो ये एक टेस्ट चार्ज है और वो हमने यहाँ पे रख दिया. Okay, suppose this is a test charge. Okay, and now अगर ये टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया, तो जैसे ही हम यहाँ पे उसको रख देंगे तो इट विल जस्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा. अगर हमने उसको यहाँ पे रखा होता तो जरूर वो इस डायरेक्शन में मूव करता. अगर हम उसको यहाँ पे रखते थे तो वो इस डायरेक्शन में मूव करता. इफ यू पुट इट हियर एट दिस पॉइंट एंड रिलीज, देन इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन हियर. तो किधर भी जिस भी पॉइंट पे हम उसको रखते हैं तो वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव होता है. अगर हम यहाँ पे रखेंगे उसको तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर यहाँ पे रखेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर रखेंगे तो इस डायरेक्शन में निकल जाएगा. तो जिस भी पॉइंट पे हम रखते हैं तो वो उसके हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाता है. तो जिस डायरेक्शन में वो जाता है, that direction will actually be called as the line of force. Remember, so we can get all these lines of force which are produced due to a point positive charge. Remember, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस टाइप के लाइंस ऑफ फोर्स हमको मिलते हैं जो कि रेडियली आउटवर्ड्स रहते हैं, रेडियली आउटवर्ड्स. रिमेंबर, बट ऑन द अदर हैंड इफ वी हैव अ नेगेटिव चार्ज हियर, तो अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, दिस इज सपोज अ नेगेटिव चार्ज kept at the center, and suppose we keep a test charge anywhere around it. तो कोई भी ये टेस्ट चार्ज सपोज है, वो अगर हमने यहाँ पे अगर रख दिया तो immediately it will get attracted towards this negative charge and just fall on it. If we keep it here, then it will just accelerate in this direction here. If we keep it here and release, then it will come along this path. So if we keep it here and it will come along this path. So कहीं भी अगर हम रख देंगे उसको तो it will just get attracted towards this negative charge, because this test charge is always going to be positive, and that's why it will always get attracted towards this negative charge. And that's why the lines of force here in this case will actually be inwards like this. So if suppose the test charge is kept here, it will get attracted towards it. If it is kept here and released, it will get attracted towards this, and like that. तो ये जो अलग अलग लाइंस ऑफ फोर्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये लाइंस ऑफ फोर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं फॉर द चार्ज विच इज नेगेटिव ऑलरेडी. तो नेगेटिव चार्ज के लिए सभी लाइंस ऑफ फोर्स कैसे रहते हैं, रेडियली इनवर्ड्स वी कैन से. तो ये सारे जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड शो करते हैं, याद रखो ठीक से, एंड दे आर डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स. ओके, देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स एज वी नो already. The two lines of force can bend, but they can never intersect each other. Remember, if suppose we keep a positive charge and a negative charge at a time at some point here, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज में से जो निकलने वाले जो लाइंस ऑफ फोर्स है तो वो, और नेगेटिव चार्ज में से निकलने वाले जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो बेंड तो होंगे, because the property of lines of force is that lines of force always start from positive charge and end up to the negative charge, and hence we can see that the lines of force can be shown like this. तो सबसे पहला जो line of force है वो हम इस तरह से draw कर सकते हैं, which will be directed from positive charge and ending up to the negative charge. Okay, the second lines of force can be drawn like this. It can bend.
but it will start from positive charge and end up to the negative charge like this. तो इस तरह से ये सारे अलग अलग lines of force जो है वो हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, even on the other side also. So these are the lines of force which are starting from positive charge and ending up to the negative charge. But remember, whenever the lines of force start, they always start right at right angles to the surface. अगर हमने इसको थोड़ा zoom करके देखा तो देखो ठीक से, you can see clearly that there is a angle of 90 degree in the surface of a line of force here and the surface where they start here. तो ये दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, and it will always be here. तो यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ये देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी वो 90 डिग्री है जरूर. तो हर पॉइंट पे जहाँ पे भी वो निकलते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री पे ही हमेशा होते हैं. इवन इंटर भी जहाँ पे करते हैं वहाँ पे भी वो 90 डिग्री पे इंटर करते हैं. ये हमको अच्छी तरह समझना है. On the other hand, lines of force have a tendency to contract in length, and they have a tendency to exert a lateral pressure on each other, and they are crowded. The lines of forces are crowded in a region where electric field is strong. Electric field has a greater value, and the lines of force are widely separated in a region where they have the electric field have a small value. Remember, the electric field is weak. तो ये सब लाइंस ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टीज है जो हमको अच्छी तरह से याद रखने हैं. अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ मेनी लाइंस ऑफ फोर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल चार्ज. तो देखो ठीक से, हाउ मेनी लाइंस ऑफ फोर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल चार्ज. तो दिस क्वेश्चन वाज आंसर्ड बाय फैराडे. फैराडे ने ये क्वेश्चन का आंसर दिया था. उसने ये कहा कि एक चार्ज जो होता है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है, क्यों इतना, सपोज या चलो 1 कूलम चार्ज है, सपोज 1 coulomb. So 1 coulomb charge actually give rise to 1 upon epsilon naught number of lines of force. सोचो, तो अभी यहाँ पे क्या है ना कि number of lines of force originated from 1 coulomb charge is actually going to be 1 upon epsilon naught, which means it will be actually 1 upon 8.85 into 10 raised to minus 12, which actually becomes actually equal to, तो ये 1 upon 8.85 मतलब 0 point समथिंग बनेगा, 0.1 समझ लो, इंटू 10 रेज टू ये -12 ऊपर जाके क्या बनेगा, +12 बन जाएगा. एंड दिस एक्चुअली विल बिकम अ वेरी लार्ज नंबर, वेरी बिग नंबर, एंड दिस नंबर विल बी द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल 1 कूलम चार्ज. तो एक कूलम चार्ज से इतने सारे लाइंस ऑफ फोर्स हमको मिलते हैं. देखो ठीक से, एंड वी कैन जस्ट इमेजिन हाउ क्राउडेड दे मे बी. तो कितना क्राउडेड वो होते रहेंगे ये हम समझ सकते हैं आराम से. चलो ठीक है, इसमें से जो लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे हैं वो इतने सारे हैं चारों तरफ. ओके, अभी हम देख सकते हैं एक कूलम में से इतने सारे लाइंस ऑफ फोर्स निकलते हैं. तो हाउ मेनी लाइंस ऑफ फोर्स विल ओरिजिनेट फ्रॉम अ क्यू कूलम चार्ज. यू कैन से, अगर एक क्यू कूलम का चार्ज हमारे पास है और वो भी सपोज पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज में से अलग अलग डायरेक्शन में जो लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे वो कितने रहेंगे. तो वो अगर हमको काउंट करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा. देखो, अगर 1 कूलम चार्ज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इतने लाइंस ऑफ फोर्स अगर ओरिजिनेट करता है, तो क्यू कूलम चार्ज जो है वो कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करेगा, तो क्यू टाइम्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. These many lines of force will be originated from a single Q charge. तो Q चार्ज के द्वारा इमिट किए हुए जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो कितने रहेंगे, तो उसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली Q by epsilon naught. Remember, this is the number of lines of force which are originated from a single Q charge, Q coulomb charge. And at the same time, how many lines of force will be absorbed by a negative charge. If we talk about a negative charge, then lines of force will be directed towards it, right? So how many lines of force will be absorbed or entering into a negative charge. So again the same thing, that is minus Q by epsilon naught. So these many lines of force will be entering into the negative charge here. So remember this concept. This is the Faraday's assumption. Okay, what does it tells us? 1 coulomb charge give rise to 1 upon epsilon naught lines of force, and hence we have to assume that the Q coulomb charge actually give rise to Q by epsilon naught number of lines of force. तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है. Okay, next we can talk about is the concept of electric flux. Okay,
see here, if suppose we have a electric intensity here, अगर suppose हमारे पास एक electric intensity है, मान लो एक electric field है, देखो इस तरफ से, which consists of lines of force in this way. ये suppose बहुत सारे lines of force है जो इस रीजन में से पास हो रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। अभी इस लाइंस ऑफ फोर्स वाले एरिया में से अगर हम सपोज एक एरिया रखते हैं, इफ यू कीप एन एरिया इनसाइड दिस होल रीजन, ओके, सो कंसिडर अ स्मॉल एरिया लाइक दिस। सपोज एक छोटा एरिया हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं जिसका एरिया ds है, ओके, ds। तो और ये इंटेंसिटी जो है वो E है सपोज। अच्छा, उससे पहले हम एक बात प्रूव करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइंस ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो समझो ठीक से। अभी देखो, सपोज देयर इज अ चार्ज, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज सपोज, and suppose that it emits the lines of force in all the directions in this way। तो ये सब lines of force उसमें से originate हो रहे हैं, ये देखो इस तरह से। ओके, ये सारे lines of force है जो इसमें से originate हो रहे हैं। तो all these lines of force will pass through a small sphere of radius r। इमेजिन करो कि इस चार्ज के आसपास हमने एक स्पीयर ड्रॉ किया। सपोज एक स्पीयर हम ड्रॉ करते हैं, just wait, ओके, ये सपोज हमारे पास चार्ज है और इसके ऊपर हमने एक स्पीयर ड्रॉ किया। अभी इस स्पीयर के पूरे सरफेस एरिया में से वो सारे लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे होंगे, समझ सकते हो आराम से। सो यू कैन सी दैट द ऑल द लाइंस ऑफ फोर्स विल बी कटिंग दिस स्पीयर हियर। तो यहाँ पे ये लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कट कर रहे होंगे, इस स्पीयर को कट करके बाहर जाएंगे, बराबर है। ये देखो इस तरह से। तो जो इस लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इस स्पीयर को कट करके बाहर जा रहे हैं, तो उसको ही हम बोल सकेंगे कि अभी एक सिंपल सी बात देखो कि अगर ये स्पीयर्स में से कट हो रहे हैं, तो अभी मुझे बताओ कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कितने हैं जो इस चार्ज में से निकलते हैं। तो वो हमको पता है Q/ε0, जो हमने अभी भी देखा। देखो लास्ट स्लाइड में देखो ठीक से, ये जो हमने देखा कि Q/ε0 number of lines of force are originated from a single charge, okay, Q charge। Now we'll see that if suppose these lines of force, अभी अगर suppose एक Q charge अगर यहाँ पे रखा हुआ है सेंटर पे, तो उसकी वजह से ये जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे वो कितने रहेंगे, तो Q/ε0 रहेंगे, नो डाउट। and all these lines of force will be distributed uniformly over the whole surface of the sphere, करेक्ट है। तो इस पूरे सरफेस में से, स्पीयर के सरफेस में से वो बाहर जा रहे हैं, करेक्ट है। तो हमको अगर ये निकालना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग पर यूनिट एरिया, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, देखो ये नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द फ्लक्स, एंड हेंस वी कैन से व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, तो फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग पर यूनिट एरिया। सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, we'll have to find out this flux and divide it by area simply। तो ये अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो the flux density will be simply denoted by flux upon area। how much flux or how many lines of force are originated from this charge Q here, it is going to be Q/ε0, and that is to be divided by the area of this whole sphere here। and how much is the area of the sphere, तो इस पूरे स्पीयर का एरिया कितना है,
तो हम वो बोल सकते हैं यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी सिंपली 4 pi r square, sorry, so it is going to be 4 pi r square, that is the area of the sphere. And if we replace it here, then we can get this 4 pi r square, where r is going to be the actually radius of that sphere. Okay, sphere का radius ही r है. और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो ठीक से, तो वो बन जाएगा q अपॉन ये इप्सिलॉन नॉट नीचे चला जाएगा, जो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर, जिसको ही हम लिख सकते हैं आराम से नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r स्क्वायर. बट इफ यू रिमेंबर, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. चेक, यही तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है. तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि फ्लक्स डेंसिटी हमेशा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बराबर हुआ करता है. एंड फ्लक्स डेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो अगर फ्लक्स को हमने फाई से अगर डिनोट किया, टोटल फ्लक्स को अगर फाई से डिनोट किया, तो हम बोल सकते हैं फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स पर यूनिट एरिया विच इज डिनोटेड बाय डी फाई बाय डी एस. एस मतलब सरफेस एरिया, रिमेंबर. सो वी हैव प्रूव्ड दैट द फ्लक्स डेंसिटी means d phi by ds is actually equal to E, that is electric intensity. Remember this correctly. Flux density is always equal to electric intensity. Okay, so इससे ही हमको एक सिंपल सा फॉर्मूला मिल जाएगा. इसको अगर थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हमको मिलेगा d phi, that is the small flux passing through a small area, will actually be equal to the intensity multiplied by area. ये सिंपल सी बात जो है वो हमको पता चलती है, जिसको हम बोल सकते हैं द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स. एक्चुअली दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स बेसिकली. एंड इफ वी सी हियर इन दिस डायग्राम, then we can see clearly that if suppose there is a electric field of E here, then the an area of ds is kept here in this electric field, then how much flux is passing through this area here. तो इस एरिया में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो वो कितना मिलेगा हमको, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इट इज गोइंग टू बी डी फाई इज इक्वल टू ई इनटू ds. So this is basically the flux passing through a small area when that area is already perpendicular to the electric intensity. तो अगर ये एरिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर है तो हम ऐसा कर सकते हैं, नो डाउट. लेकिन अगर ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर क्या होगा. सपोज ऑन द अदर हैंड, हियर इज सपोज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इन द सेम डायरेक्शन बट द एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर. तो ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, बट एरिया जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है वो सपोज ऐसा रखा है. देखो, तो एरिया इज समवॉट टिल्टेड लाइक दिस. तो ये इस तरह से टिल्टेड है. अभी क्या करेंगे, अभी इस टिल्टेड एरिया में से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा. देखो ठीक से, कि इफ वी जस्ट हैव द नॉर्मल टू दिस एरिया, इस एरिया का हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. ये देखो, ये हो गया इस एरिया का नॉर्मल. ओके, नॉर्मल मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड उस एरिया के ही बराबर होगा. तो सपोज इस एरिया का इस एलिमेंट का एरिया अगर ds है, तो इस वेक्टर का जो लेंथ है वो भी कितना रहेगा, ds रहेगा बिल्कुल. और एट द सेम टाइम दिस नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू द एरिया हियर. तो इस एरिया को परपेंडिकुलर जो रहेगा वेक्टर, उसको हम बोलेंगे ds. ओके, अभी इसमें देखो इस इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना इसमें से फ्लक्स पास हो रहा है, तो वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिक ds बार को हमको डिवाइड करना पड़ेगा. वी विल हैव टू रिजॉल्व इट इनटू टू कंपोनेंट्स. दो कंपोनेंट्स में हम इसको रिजॉल्व करेंगे. सपोज इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हो. सपोज देखो ठीक से, नाउ विल सी द electric intensity ds is going to be resolved into two components. One component is going to be along this area, along the intensity. Okay, तो इस intensity के डायरेक्शन में एक component रहेगा. Let us call it as ds cos theta. तो ये component हमने यहाँ पे मान लिया.
इसको हम बोल देंगे ds cos थीटा। और दूसरा जो कंपोनेंट उसका है वो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा, जो कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट रहेगा, जिसको हम बोल देंगे ds sin थीटा। एक्चुअली थीटा इज दिस एंगल हियर, ये जो एंगल है इसको हम बोल सकते हैं थीटा, और उसकी वजह से ये जो कंपोनेंट बनेगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, तो वो रहेगा एक्चुअली ds into cos theta. Okay, and the second component here which is perpendicular to the electric intensity is going to be actually ds into sin theta. Okay, here this ds sin theta component it's of no use. ये जो ds sin theta component है वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि it is not passing perpendicular to the electric intensity। तो इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को वो परपेंडिकुलर है, इसलिए वो कुछ काम का नहीं है। ये जो, क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात समझो यहाँ पे कि इस ds cos थीटा का जो करस्पॉन्डिंग एरिया रहेगा वो एक्चुअली ऐसा रहेगा, समझ सकते हो ठीक से। ये देखो ऐसा रहेगा, और इस ds sin थीटा का जो करस्पॉन्डिंग एरिया है वो एक्चुअली ऐसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, और इसके कारण हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते, उसमें से फ्लक्स कुछ भी पास नहीं होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो भी फ्लक्स पास हो रहा है वो इस वर्टिकल कंपोनेंट में से ही पास हो रहा है, जिसका जिसका वैल्यू ये ds cos थीटा है। और इसलिए हमको ये कहना होगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will be d phi, which is going to be actually the product of E and ds cos theta. अच्छा, ये बात अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक दूसरा एक तरीका है जिसको यूज करके हम ये समझ सकते हैं आराम से। देखो ठीक से, सॉरी एक्चुअली टाइम हो गया क्या? ओके ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कंसेप्ट है वो हम और डिटेल में देखेंगे कल, बट यू आर रिक्वेस्टेड टू रिवाइज ऑल दिस concepts from 11th standard in this chapter electrostatics, so to tomorrow। तो कल तक आपको ये सारे जो कंसेप्ट्स है वो रिवाइज करके रखने हैं, ठीक है। जो 11th स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा है वो एक बार रिवाइज करके रखो, so that we can continue with this chapter tomorrow। okay, चलो, thank you all of you, we'll end this lecture here।